So, as you know, that there is this story, Lajvanti, in our syllabus, and this story has been written by Rajinder Singh Bedi. Rajinder Singh Bedi was born on 1915, expired in 1984, and he was one of the leading Urdu writers of the 20th century. Primarily, he was a short story writer, and his most famous novel is Ek Chadar Maili Si, and it won him the Sahitya Academy Award in 1962. Rajinder Singh Bedi wrote film scripts, dialogues in Hindustani for over 40 films, including classics such as Devdas, Mirza Ghalib, Madhumati. He was awarded the Padma Shri in 1972 and the Ghalib Award in 1978. Rajinder Singh was part of the progressive writers movement. This movement was basically responsible for the realism present in the modern Indian literature, and the major contributors in this movement were Krishna Chandra, Ismat Chugtai, Manto. All these people spearheaded the movement, and the basic idea was to establish socialistic principles in the society, and these people to highlight the social evils, the problems that common men faced. So we can simply say that modernism was introduced by these people in the Indian literary scene. This particular story is originally written in Urdu, and it has been translated into English. In this story, we shall deal with this theme of partition literature in general. Partition literature is the literature, the stories, essays, poetry written specifically keeping in mind the experiences or the trauma faced by people during the partition of India into India and Pakistan. And as you know, it was a very sensitive period of time, because people from both the countries, they tried to migrate to the respective safe places for them. Like Hindus thought about India as a safe place, and Muslims, they tried to migrate towards Pakistan as it was offered and propagated as safe haven for Muslims. So the migrations were there, and during the migrations, people came in contact with each other, and there was this heightened sense of animosity, enmity. People were against each other. So Hindus and Muslims and Sikhs as well, they all tried to dominate each other. There was violence, there were riots. So this period is one of the most disturbing periods in the history of entire subcontinent. So one specific, you can say, the problem or the issue that came up during those times was the abduction of women. So women were abducted by the opposite parties. Hindu women were abducted, Muslim women were abducted, and many other things were done to them. Now, in this story, Lajvanti, the writer has tried to trace the
life of a simple woman whose name is the name of the story. She is the titular character, Lajvanti, and she goes through this experience of abduction. And when these abducted women were actually tried to brought back, there was a policy by the government. In reality, there was a policy. In the story as well, there is a policy where people try to bring back these women. Government also helps them, and ultimately these women are brought back into their original families and homes. But there is a tendency among people that they reject these women. Most of the times they don't want to accept them because they consider them polluted now. So this idea of pollution, this idea of other comes into play here. So this is a very touching story. It begins with a Punjabi song translated into English, which says, "Touch the leaves of the Lajvanti, they curl and wither away." कि लाजवंती के पत्तों को टच करें. लाजवंती वो पौधा भी है, इसको हम छुई मुई बताते हैं, कि लाजवंती के पत्तों को टच करें तो वो कर्ल कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, विदर अवे, टूट के बिखर जाते हैं. अब पार्टीशन के बाद अब जो हमारी कहानी है वो शुरू हो जाती है. आफ्टर द पार्टीशन, when countless wounded people had finally cleaned the gore from their bodies, they turned their attention to those who had not suffered bodily but had been wounded in their hearts. तो पार्टीशन के बाद जब काउंटलेस असंख्य घायल लोगों ने फाइनली अपने घाव जो सूख गए थे, पपड़ियां बन गई थी, वो उनके जिस्मों से पोंछ लिया, क्लीन कर लिया, तो फिर उनका ध्यान गया उन लोगों की तरफ जिनको बॉडी में तो सफरिंग नहीं थी, मतलब शारीरिक रूप से कष्ट नहीं था, पर जो मन में जिनको आघात लगा था या जो मानसिक रूप से घायल हुए थे, उनकी तरफ उनका ध्यान गया. अभी वहाँ जो गांव है, जो जिस जगह की बात कर रहा है, वहाँ रिहेबिलिटेशन कमिटीज वर फॉर्म्ड. रिहेबिलिटेशन माने पुनर्वास करने के लिए संस्थाएं, समितियां बना दी गई हैं. लोगों के ग्रुप्स हैं जो पुनर्वास में हेल्प करेंगे, पुनः बसाने में हेल्प करेंगे इन अबडक्टेड वुमेन को, या जो लोग माइग्रेट हो गए, घर परिवार जिनका नहीं रहा, उनको. रिहेबिलिटेशन कमिटीज वर फॉर्म्ड इन एवरी नेबरहुड, हर मोहल्ले में, हर गली में, एंड साइड स्ट्रीट्स, गली में बनाई गई. एंड द कैंपेन, और ये जो प्रोग्राम है, कैंपेन है, अभियान है, टू हेल्प द विक्टिम्स. विक्टिम माने जिनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, जिन्होंने सफर किया है, जो परेशानी में, तो हेल्प द विक्टिम्स एक्वायर, और उनको हेल्प कर रहे हैं बिजनेस एक्वायर करने में, लैंड एक्वायर करने में, होम्स एक्वायर करने में उनके लिए. और मच एंथुजियाज्म के साथ, बड़े उत्साह के साथ ये कार्रवाई चल रही. तो इस दौर की बात है जब पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होकर हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए. ऑब्वियस है जब हम यहाँ से जैसे अपना घर बार छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, तो हमारी जमीन जायदाद तो सब यहीं रह गई, कितना के सामान हम साथ कैरी कर पाएंगे. इस केस में क्या था कि जो वहां से लोग यहाँ आ रहे थे, उनको पहले रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया, फिर उनको कोशिश की गई बसाने की, कि जहां भी खाली जगह है या उनको देने की, या उनको बिजनेस जो पहले करते थे वो एस्टेब्लिश करके देने की, ताकि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके. तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन कमिटीज बनाई गई नेबरहुड में, और ये सारा पैसिव में लिख रहा है. देयर वाज वन प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम था, दो यद्यपि, विच सीम टू हैव एस्केप्ड नोटिस, जो लगता था कि बाकियों के ध्यान से निकल गया था. इट कंसर्न द रिहेबिलिटेशन ऑफ एब्डक्टेड वुमेन. तो ये जुड़ा हुआ था अपहृत औरतों के साथ, उन औरतों के साथ जिन एब्डक्ट करके, यानी कि किडनैप करके ले जाया गया था कहीं दूसरी जगह, दूसरे देश में, दूसरे इलाके में. तो एब्डक्टेड वुमेन, रिहेबिलिटेशन करना है उनका, पुनर्वास करना है किडनैप्ड औरतों का. Its rallying cry was rehabilitate them in your hearts. तो इसका जो आंदोलन का नारा था, औरतों के जो पुनर्वास से रिलेटेड है,
अपहृत औरतों के पुनर्वास से, उसका जो नारा था वो था रिहेबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स, कि उनको अपने दिलों में पुनर्वास उनका करो, दिलों में उनको बसाओ दोबारा. It was bitterly opposed by Narayan Baba's temple and the conservatives who lived in and around it. तो ये अभियान सब लोगों ने वेलकम नहीं किया. जैसे यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है नारायण बाबा, तो इनका मंदिर है कोई, इन लोगों ने विरोध किया कड़ाई से, और बाकी कंजर्वेटिव्स ने जो इस टेम्पल के अंदर या आसपास रहने वाले थे, इन लोगों ने इस अभियान का विरोध किया है कि औरतों को पुनः बसाओ अपने दिल में या घरों में, इस बात का विरोध किया. A committee was formed in the Mulla Shakur neighborhood near the temple to get the program off the ground. Off OFF के साथ लिखा है कि मतलब जमीन से उसको लगाने के लिए या उसको दिशा देने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, ऑफ द ग्राउंड मतलब कि जमीन से उठाने के लिए, रेस्ट से एक्टिव बनाने के लिए कमिटी बनाई गई मुल्ला शकूर नेबरहुड में, मुल्ला शकूर मोहल्ले में, टेम्पल के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए या इसको लॉन्च करने के लिए. बाबू सुंदरलाल वॉज इलेक्टेड इट्स सेक्रेटरी. तो सुंदरलाल जी इसके सेक्रेटरी बनाए गए बाय अ मेजोरिटी ऑफ 11 वोट्स. तो 11 वोट्स की मेजोरिटी इनको मिली एंड वकील साहिब इसके प्रेसिडेंट बनाए गए. तो कमेटी बना रहे हैं छोटी सी, तो 11 वोट से सुंदरलाल जी सेक्रेटरी बना दिए गए, वकील साहब इसके प्रेसिडेंट बना दिए गए. It was the opinion of the old petition writer of the Chowki Kala district in which other well-regarded individuals of the neighborhood concurred with him. तो ये कोई पुराने हमारे अर्जी नवीस हैं, पिटिशन राइटर हैं चौकी कला डिस्ट्रिक्ट के, और जिनके साथ बाकी लोगों ने भी एग्री किया, जो वेल रिगार्डेड थे, इज्जतदार लोग थे, पड़ोसी जो थे मोहल्ले के, कि कोई भी नो वन कुड बी एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर पैशनेटली फॉर द कॉज देन सुंदरलाल, कि कोई भी इस काम को, इस मकसद को पूरा करने के लिए सुंदरलाल से ज्यादा जुनून से काम नहीं कर सकता. बिकॉज हिज ओन वाइफ लाजवंती टू हैड बीन अबडक्टेड, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी लाजो या लाजवंती जो थी वो किडनैप हो चुकी थी, एबडक्ट हो चुकी थी. तो इनको लगा कि सुंदरलाल को सेक्रेटरी बनाएंगे तो सुंदरलाल इस काम को बड़े जोश के साथ करेंगे, क्योंकि सुंदरलाल की पत्नी, खुद की पत्नी भी किडनैप्ड हुई है. अर्ली इन द मॉर्निंग, अब जो कमेटी है वो क्या करती है, काम कैसे करते हैं लोग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सुंदरलाल बाबू एंड हिज कंपेनियंस रसालू एंड नेकी राम यूज्ड टू मेक देयर राउंड्स थ्रू द स्ट्रीट्स. तो वो सुबह सुबह क्या करते हैं, फेरी लगाते हैं, राउंड करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनसे बात करते हैं. तो स्ट्रीट में जब वो चल रहे होते हैं, राउंड बना रहे होते हैं अपना, मतलब वो उस मोहल्ले के चक्कर लगा रहे हैं, तो यूनिसन में एक स्वर में गाते हैं सारे तीनों लोग, टच द लीव्स ऑफ द लाजवंती दे कर्ल एंड विदर अवे. तो ये वाला सॉन्ग जो पहले आया, पंजाबी का सॉन्ग, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है कि लाजवंती के पत्तों को छुओ, यानी कि उस छुई मुई पौधे के, दे कर्ल एंड विदर अवे, तो वो कर्ल कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं यानी कि, और विदर अवे टूट के बिखर जाते हैं. सुंदरलाल्स वॉइस वुड फेड, तो सुंदरलाल की आवाज जो थी वो फेड हो जाती थी, माने कि धुंधली पड़ जाती थी. वॉकिंग अलोंग इन साइलेंस ही वुड थिंक अबाउट लाजवंती, और चुपचाप साइलेंटली चलता हुआ सन्नाटे में वो लाजवंती के बारे में सोचता था. Who knows where she might be, कौन जानता था कि वो कहाँ होगी. In what condition, किस हाल में होगी. What should she be thinking of him, वो उसके लिए क्या सोच रही होगी. Would she ever come back, क्या वो कभी वापस आएगी. And his feet would falter on the cobblestone pavement, और उसके पाँव जो थे वो लड़खड़ा जाते cobblestone pavement पे, यानी कि पक्के रास्ते पे. But by now things had reached a point where he had stopped even thinking about लाजवंती. तो कुछ दिन बीत जाते हैं, एक ऐसा वक्त आ जाता है कि लाजवंती के बारे में सोचना उसने छोड़ दिया.
His pain was no longer just his. अब उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था. It had become part of the world's anguish. ये दुनिया के दर्द का हिस्सा बन गया था. That means that he could feel for everyone around him. He could feel other people's pain now. His pain, and to spare himself its devastation, he had thrown himself headlong into serving the people. और अपने आप को उस दुख या कष्ट से, उस मेंटल टेंशन से बचाने के लिए, बर्बादी से बचाने के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया लोगों की सेवा करने. All the same, every time he joined his companions in that song, he couldn't help wondering at how delicate the human heart is. और जब कभी भी अपने साथियों के साथ वो गाना ज्वाइन करता, गाने के लिए, गाते माने मिलके, तो वो ये सोचे बिना, हैरान हुए बिना नहीं रह पाता था कि इंसान का दिल कितना डेलिकेट है, कितना नाजुक है. The slightest thing could hurt it. छोटी से छोटी चीज भी इसको हर्ट कर सकती है, दुख पहुंचा सकती है. Exactly like the लाजवंती प्लांट, छुई मुई के पौधे की तरह, जिसके लीव्स जो हैं वो हल्का सा टच करते ही कर्ल कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं. Well, that may be, but for his own part, he had never spared any effort in treating his own Lajvanti as badly as possible. चलो वो भी ठीक है, लेकिन जहां तक उसकी अपनी बात है तो उसने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा लाजवंती को जितना बुरा हो सके उतना ट्रीट करने का. वो उसको पीटता भी था. He would beat her on the flimsiest pretext. छोटी से छोटी बात पे पीट देता था. Taking exception to the way she got up, the way she sat down, and the way she cooked food. सिर्फ इस बात पे कि कैसे उठती है, कैसे खा बैठती है, कैसे खाना पकाती थी, इसको छोड़ के एनीथिंग एंड एवरीथिंग, किसी भी बात पे और कहीं भी वो उसको पीट देता था. ऐसा इनका रिलेशन था. लाजो वॉज अ स्लेंडर एंड एजाइल विलेज गर्ल. लाजो एक पतली और फुर्तीली, एक्टिव गांव की लड़की थी. टू मच सन हैड टर्न्ड हर स्किन क्वाइट डार्क. बड़े ज्यादा धूप में रहने से उसकी स्किन सांवली पड़ गई थी, डार्क पड़ गई थी. एंड नर्वस एनर्जी इन्फॉर्म्ड हर मूवमेंट्स. और उसके चलने फिरने में नर्वस एनर्जी थी. which brought to mind the fluid grace of a dewdrop rolling mercury like on the leaf. और उसकी मूवमेंट देख के ध्यान में आता था कि जैसे ओस की एक बूंद है, वो पारे की तरह एक लीफ के ऊपर रहती है, टिकती नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है. नाउ टू वन साइड, नाउ टू द अदर, कभी एक किनारे पे, कभी दूसरे पे. हर लीननेस, उसका पतलापन, या जो उसकी बॉडी फिजिकली शी इज थिन, पतली है, which was more a sign of health than its absence, जो कि एक तरह से सेहतमंद होने की निशानी थी, ना कि उसके बीमार होने की. वरिड सुंदरलाल एट फर्स्ट, तो शुरू में जब शादी हुई तब तो सुंदरलाल को बड़ा वरी होता था, चिंता होती थी कितनी पतली है ये. बट व्हेन ही ऑब्जर्व, पर जब उसने ऑब्जर्व किया हाउ वेल शी कुड टेक ऑल मैनर ऑफ एडवर्सिटी, कि कैसे वो हर तरह का दुख, तकलीफ, इंक्लूडिंग इवन फिजिकल अब्यूज, कि शारीरिक मारपीट भी वो झेल गई. ही प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड हिज मिसट्रीटमेंट ऑफ हर, तो धीरे धीरे उसने उसका जो मिसट्रीटमेंट है, यानी कि जो बुरा बर्ताव है अपना, वो और बुरा होता गया, उसको इन मिसट्रीटमेंट बढ़ाता गया. क्वाइट फॉरगेटिंग, ये भूल गया कि एक लिमिट तक ही किसी बंदे में बर्दाश्त करने की हद होती है, और वो एक दिन लिमिट क्रॉस भी हो सकती है. दैट पास्ट अ सर्टेन लिमिट, कि एक लिमिट से बियॉन्ड, से परे किसी की भी पेशेंस, किसी की भी जो धीरता है वो खत्म हो सकती. लाजवंती टू हैड कंट्रीब्यूटेड हर शेयर इन ऑब्सक्यूरिंग द परसेप्शन ऑफ सच अ लिमिट. लाजवंती ने भी कंट्रीब्यूट किया था इस परसेप्शन को ऑब्सक्योर करने में, यानी कि मिसअंडरस्टैंड करने में, क्योंकि बाय नेचर शी वॉजंट वन टू होल्ड ऑन टू हर एंग्विश फॉर टू लॉन्ग. बाय नेचर वो क्या थी कि वो ऐसी नहीं थी कि अपने गुस्से को बड़े अपने तक दबाए रखे लंबे समय तक.
A simple smile from Sundarlal following the worst fight. कि बहुत बुरी भी लड़ाई हो गई होगी, एक सिंपल स्माइल सुंदरलाल के चेहरे से आएगी एंड शी वॉज अनएबल टू स्टॉप हर गिगल्स. तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाएगी, अपने मुस्कुराना और खिलखिलाना शुरू कर देगी. फिर उससे शिकायत करेगी, इफ यू बीट मी एवर अगेन आई विल नेवर स्पीक टू यू. अगर तू मुझे दोबारा पीटेगा मैं कभी तेरे से बात नहीं करूंगी. माने इस सिंपल सी बात से वो बाकी सारी चीजें भुला देगी. It was obvious she had already forgotten all about the fights and beatings. तो ये obvious था कि वो सारी उसने fights और beatings भुला दी थी. That's how husbands treat their wives. इस तरह से husbands अपनी wives को treat करते हैं. She knew this truth. तो एक सिंपल गांव की सेटिंग है, तो जैसे गांव में नॉर्मली उस दौर में शायद होता होगा कि husbands wives को पीटते भी हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो वो ये बात समझती थी किसी भी अन्य गांव की लड़की की तरह कि ऐसे ही हस्बैंड अपनी वाइफ्स को ट्रीट करते हैं. इफ अ वुमन शोड द स्लाइटेस्ट इंडिपेंडेंस, अगर औरत थोड़ी बहुत आजादी शो करने की कोशिश करती है, द गर्ल्स देमसेल्व्स वुड बी द फर्स्ट टू डिसअप्रूव. तो लड़कियां ही डिसअप्रूव करना शुरू कर देंगी, मजाक उड़ाना शुरू कर देंगी. हाँ, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ये कैसा मर्द है, can't even keep his little woman in line, कि अपनी औरत को भी संभाल के नहीं रख सकता, उसको भी अपने हिसाब से नहीं चला सकता. The physical abuse men subjected their wives to had even made it into the women's songs. तो ये जो फिजिकल मारपीट है, तो ये जो मर्द औरतों अपनी पत्नियों के साथ करते हैं, तो ये तो जो औरतों के गाने हैं उसमें भी इसने जगह बना ली थी. लाजो खुद भी गाया करती थी, मैरी अ सिटी बॉय, नो सर नॉट मी, कि शहर के लड़के से शादी करनी है, नहीं नहीं मालिक, नहीं नहीं श्रीमान, मैं नहीं करूंगी. लुक एट हिज बूट्स एंड माई वेस्ट इज सो नैरो, देखो उसके जूते और मेरी कमर कितनी पतली है. माने कि वो पीटेगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे. तो ये उनके गांव की सेटिंग है. Nonetheless, at the very first opportunity, she had fallen in love with just such a city boy, Sundarlal. हालांकि पहला ही मौका उसको मिला ऐसा कभी, और वो छठ से एक शहर के लड़के सुंदरलाल के प्यार में पड़ गई. अब हम कहानी में थोड़ा बैकड्रॉप में उसमें जा रहे हैं, फ्लैशबैक में पीछे जा रहे हैं. जब सुंदरलाल और लाजो की शादी हुई होगी, तो लाजो जो थी वो प्यार में पड़ गई थी इसके पहली ही नजर में, पहले ही मौके पे. Who had first come to her village as part of a wedding party, जो कि पहली बार इनके गांव में आया था. अब वेडिंग पार्टी यानी कि बारात का पार्ट हिस्सा बनके ये लाजो के गांव में गई होगी बारात, सुंदरलाल भी उसमें था. And had worshipped whispered into the groom's ear. अब दूल्हे के कान में उसने whisper माने फुसफुसा के बोला था, your sister in law is pretty hot stuff यार, कि तेरी साली तो बड़ी pretty hot stuff है, बड़ी पटाखा है. Your wife must be quite a dish too, तो तेरी वाइफ भी बड़ी टेस्टी डिश होगी. So you can see how women are being objectified here. तो एक को वो pretty hot stuff बोल रहा है, दूल्हे के कान में बोल रहा है सुंदरलाल, और तेरी वाइफ भी बड़ी टेस्टी होगी, स्वाद होगी, माने like an object that should be relished or things like that. पर लाजवंती had overheard him. लाजवंती ने सुन लिया उसको बोलते हुए. She took no notice at all of his large heavy boots and forgot all about her own narrow waist. तो उसने उसके बड़े बूट भी नहीं देखे जो भारी थे, और अपनी पतली कमर के बारे में भी भूल गई. Such were the memories that Sundarlal recalled during his early morning rounds with his companions. तो इस तरह की यादें सुंदरलाल दोबारा रिकॉल करता था जब वो अर्ली मॉर्निंग राउंड्स करते थे, फेरियां लगाते थे या घूमते थे अपने साथियों के साथ, लोगों को घरों में जाते होंगे, उनको समझाते होंगे. He would say to himself, if I could get another chance, just one more chance, I would rehabilitate Lajo in my heart. अपने आप से वो ये कहा करता था कि अगर उसको एक मौका और मिल जाए, सिर्फ एक मौका, मिस करता है वो उसको, तो मैं उसको बसाऊंगा दोबारा अपने दिल में. I would show the people that these poor women are hardly to blame for their abduction. और मैं लोगों को दिखा दूंगा कि ये जो बेचारी औरतें हैं,
इनका कोई कसूर नहीं अपनी किडनैपिंग में। देयर विक्टिमाइजेशन बाय लेचरस राइटर्स, कि ये जो कामुक या वासना वाले राइटर्स दंगई हैं, उनकी वो विक्टिम्स हैं। वो तो बेचारे सफर करने वाले हैं, वो तो उनको तो बर्दाश्त करना पड़ा, उनको तो सहना पड़ा। A society which is unable to accept and rehabilitate these innocent women, और ऐसा समाज जो इन बेचारी औरतों को स्वीकार करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, और ये भोली भाली इनोसेंट हैं जो औरतें, तो वो तो कहता है कि अपने अंदर तक, अपने केंद्र में ही वो सड़ गया है, रॉटन है, और इसको, ऐसे समाज को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के विचार सुंदरलाल के हैं। फिर सुंदरलाल क्या करेगा? सुंदरलाल would plead with the people and take these women under their roof and give them the same status which any woman, any mother, daughter, sister or wife enjoyed. फिर वो कोशिश करेगा, लोगों को प्लीड करेगा, यानी कि उनको सब समझाएगा, हाथ जोड़ के विनती करेगा कि इन औरतों को स्वीकार करो, अपने छतों में, उनके अपने घरों में इनको जगह दो, अपने घर के छत के अंदर जगह दो, और उनको वही स्टेटस दीजिए जो कि किसी भी अन्य औरत को, किसी माँ को, किसी बहन को, किसी बेटी को या वाइफ को दिया जाता है। He would urge the families never to mention, even to hint at the things the poor woman had to suffer. और वो रिक्वेस्ट करता था परिवारों से कि कभी मेंशन ना करें, हिंट भी ना दें उन चीजों का जो इस बेचारी औरतों को सफर करनी पड़ी होगी, because their hearts were already wounded, क्योंकि उनके दिल तो पहले ही घायल थे, already fragile, पहले ही नाजुक थे, like the leaves of touch me not plant, जैसे कि छुई मुई, उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, जैसे कि छुई मुई के पौधे की पत्ते हैं, रेडी टू कर्ल अप एट द नियरेस्ट टच, जो छूते ही एकदम से सिकुड़ जाते हैं, अपने में ही फोल्ड हो जाते हैं।